कैसे हो? वहाँ म्यूट है। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। आप कैसे हैं? बस बढ़िया है। चलो ऑफिस से ही कर रहे हैं। जी सर, ऑफिस से ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपन ने मीटिंग स्टार्ट हो गई अपनी, उसमें क्या ऑफिशियली क्या? नहीं अभी नहीं है सर। लोग जोड़ने चालू हो गए क्या? नहीं अभी नहीं।
वीडियो ऑफिसर। Because you have listened to it. तो मैं चाहूंगा कि आप कर देता हूँ तो अब आएगी आपको आवाज, है ना? हेलो, नया आवाज आ रही है? सर से कोई कन्वर्सेशन हो गया? कन्वर्सेशन हुआ क्या सर से? आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए पहले। नेहा मैडम, हाँ सर से बात हुई थी सर, हाँ तो उन्होंने कहा था 3:45 तक ज्वाइन करेंगे, तो एक बार और रिमाइंडर कॉल करते हैं क्या? हाँ कर दो। ठीक है।
Anil bhai, good afternoon. A very good afternoon, sir. How are you? बस फाइन सर, आप बताएं कैसे हैं सर? अरे एकदम absolutely fine, absolutely fine, absolutely fine. Go, go. अरे पुनीत जी नमस्ते. नमस्कार. हेलो सर. I का sorry, शांतनु. नहीं आप खरिया बोल सकते हो. वो क्या है, पापा बैठे हैं, तू भी कहाँ मेरे को मरवाएगा. Good afternoon, sir. Good afternoon. Neha, how are you? I'm good, sir. How are you, sir? Absolutely fine. Very fine राजा. बच्चों को देखता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है. अभी बीच में एक पार्टिसिपेंट क्या गया था परसों, तो मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला, क्योंकि देयर इन बड़ौदा, तो हम लोग हर रात को 9:15 को हमारा फैमिली कॉल होता है. तो मेरे पेरेंट्स को बोला कि आज मैं स्टेरॉइड लेके आया. तो बोलते स्टेरॉइड कहाँ ले आया तूने? बोले अपने 2-4 स्टूडेंट को मिल के आया. बोले हाँ, तो फिर बराबर है. तो वो वाली स्टोरी है. बाकी पुनीत जी कैसा चल रहा है? हाउ आर थिंग्स? पुनीत Great. Support. I'm glad. शांतनु, किसी का आवाज इको हो रहा है बेटा. शांतनु, आवाज किसी का इको हो रहा है. इको हो रहा है. हाँ. I don't know. Somebody. So voice मेरा जा रहा है और उसका ऑन है, तो फिर घूम के वापिस आ रहा है. अच्छा. Welcome to 1 minute. एक मिनट से मैं चेक करता हूँ. अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है. I think better. नहीं मैडम, वेरी गुड. अभी तो नहीं, अरे अनिल भाई का ही हो रहा है. मैं बोल रहा हूँ उसके बाद वहां से एक आउट आ रहा है. वेट. अच्छा. अनिल भाई आपका आप म्यूट करो 1 मिनट. हाँ, डन. Right, sir. Thank you so much. A very good evening to all and welcome to the national webinar series organized by Modern Group of Institutions. Today we have with us Mr. Samish Dalal sir, Associate Professor S.V. Jain, School of Global Management, Dubai, a TEDx speaker, our Chairman Shri Anil Kharia sir, Vice Chairman Shri Shantanu Kharia sir, and our Group Director Dr. Puneet Kumar Dwivedi sir. On the behalf of Modern Group of Institutions, I welcome you all on our today's webinar topic, that is dealing with the people in difficult situation, the art of negotiation. Before starting the session, I would like to introduce our organization. Modern Group of Institution is a leading group of premier institution in Indore, affiliated to RGPV Bhopal, Devi Aliyah University, Indore, CBSE New Delhi, and approved by AICTE New Delhi, NCT, and PCI New Delhi. Modern Group is imparting quality education in the field of pharmacy, management, commerce, and education. Currently, we are offering more than 8 courses in this field. That includes the B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharmacy, BBA, BCom, and MBA, and B.Ed. Modern Group encompasses 2 leading pharmaceutical industries, that is Modern Laboratory and Nandini Medical Private Limited. Modern Laboratory was established in the year of 1979 by late P.C. Kharia sir. Nandini Medical Laboratories was established in 1998 and both gained prestigious acclamation in all India rating of pharma industries. We also have Modern International School, which is established in 2013. We believe in innovation and entrepreneurship. Hence, we introduced the MP's first pharma incubation center, that is Modern Incubation Center, in the year of 2019, which is supported by MSME Government of India. Recently, we have received the World Book of Record UK and World Record Academy USA, largest human image of medication capsule. Also, we are recognized participating Institute of Unnat Bharat Abhiyan in association with IIT Delhi and MHRD Government of India. The institute also have the Modern Innovation Council, which is an Institute Innovation Council cell by MHRD Innovation Cell. Now I request Chairman Sir, Shri Anil Kharia Sir, to please welcome our today's guest, Mr. Samish Dalal Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody.
अब समीश दलाल सर इज द जेम ऑफ द पर्सन, और सर का ये जो टॉपिक है आर्ट ऑफ निगोशिएशन, ये मैंने सुना हुआ है, और मेरे जब से मैंने सुना था, जब से मेरी ये इच्छा थी कि सब लोग इस चीज को सुने, क्योंकि मतलब जो सर का एक प्रेजेंट करने का तरीका और जो बात है उसके अंदर, वो हर जगह नहीं मिलती है, और एवरीबॉडी शुड बी बेनिफिटेड विद दिस। तो क्योंकि हमारी ये वेबिनार सीरीज चल रही थी, तो मैंने स्पेशली शांतनु को बोला कि मैं सर का लेक्चर चाहिए ही चाहिए है, और पर्टिकुलरली दिस टॉपिक हो, तो जितने भी सुनने वाले सभी को कंसेप्ट क्लियर हो, हाउ टू डील इन डिफिकल्ट सिचुएशन। नॉर्मली वहीं जाकर लोग बाग टूट जाते हैं, और पर्टिकुलरली फॉर बिजनेस पर्संस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एंटरप्रेन्योर्स इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर यू आर मोस्ट वेलकम। आपने हमारा रिक्वेस्ट सुनी, और सर यार आप आज सब लोगों के बीच में हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी वेलकम करना चाहता हूं, और निश्चित तौर पर आज के वेबिनार को बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir. Currently, मैडम आपका म्यूट हो गया। yes, sir. Thank you so much, sir. Currently, we are having approx 132 participants with us. Attendees are there who is going to attend our webinar. So before moving further, it is my honor to introduce our resource person, today's speaker, Mr. Samish Dalal, sir. Professor Samish Dalal, he is an associate professor in charge of Global Family Managed Business Program at SP Jain. He has done his post-graduation from the University of Queensland, Australia in November 2002, Masters of Business Administration. He graduated in accountancy, the MS University of Baroda in 1997. Also, he has done key executive program, which from Harvard University School, USA, January 2010. Mr. Dalal has done executive negotiation program from Wharton Business School, USA in March 2011. Executive education. His area of specialization are negotiation, marketing, innovation, and general management. He has published many research papers and case studies in his account, and he taught many courses, including Family Managed Business Program, Entrepreneurship Program, Honor Management Program, Women Management Program, PGDM, and PGCIM. He worked in SP Jain Institute of Management and Research, Mumbai, India. Currently, he is working with SP Jain School of Global Management, Dubai, Mumbai, Singapore, and Sydney. Mr. Dalal has started his own business too, namely Scud Muffin Private Limited, Vadodara, India Management Consulting Company, specialization into financial and investment services. Sir has extraordinary skill sets in presenting skills to engage participants to foster a better understanding of concept and learning, communication skills to interact with the various business owners, to understand and resolve their family and business issues, interpersonal skills to work in a team and to achieve organizational objectives. On the behalf of Modern Group of Institutions, I welcome you, sir. Right. Now, before moving further, negotiation is a method of which people settle differences. Well, it is an art, and we are fortunate enough to have our expert speaker amongst us. Before getting delayed, I would like to request Mr. Samish Dalal, sir, to start their introductory talk on today's topic, that is dealing with people in difficult situations, the art of negotiation. Over to you, sir. थैंक यू नेहा मैडम, इट वाज वंडरफुल एंड ऑनेस्टली दो चीज हैं, इतना बेहतरीन इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन कोई देता नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर इसमें पुनीत जी ने लास्ट टाइम भी एक ऐसा वीडियो बनाया था, मेरे को जैप कर दिया था, तो इस बार भी आप दोनों ने मिलके या अपना शांतनु ने कुछ कंट्रीब्यूशन होएगा, आई एम श्योर
तुम लोग की कुछ मस्त मस्त खिचड़ी पका लेते हो, पर मॉडर्न इंस्टीट्यूट हो और मॉडर्न करते जा रहे हो, मतलब ऑल द Thank बेस्ट, you so much, वंडरफुल, sir. या इट्स बीन ग्रेट, इट्स बीन ग्रेट। एक दो चीज हाइजीन रूल समझ लेते हैं। यदि मेरी आवाज कोई भी कारण से बीच में टूट जाती है तो कृपया करके ऐसा कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि ठीक है मेरी आवाज नहीं आ रही है कोई भी Right. कारण से। ओके, सेकेंडली, जब कभी आपको ऐसा लगे कि हम लोग को क्वेश्चन आंसर का ब्रेक लेना है, तो आज मेरी अर्पिता मैडम से बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला था कि हम कंटिन्यूअसली जाएंगे तो भी एटलीस्ट आई नीड 35 to 40 मिनट्स कंटिन्यूअसली, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। तो Take your अपन own time, इतना sir. जाएंगे, उसके बाद अपन कोई एक ब्रेक या कोई भी एक चेंज करना होगा तो करेंगे। इज दैट ओके Surely, विद sir. एवरीबॉडी? ओके, Yes, sir. फैंटास्टिक। All right, so let's get going. All right, guys. Good afternoon, before everyone. starting, And I would as like you to say, I interrupt mean, that we have approx 190 participants. Those have joined you, sir. thank you, thank you, Right, thank sir. you, thank you. Thanks. ये आप लोग का कमाल है, मेरा उसमें शायद कितना होगा पता नहीं है। आप लोग का कमाल है, आप लोग ने बहुत आउटरीच किया है, so that's a wonderful thing. Okay, so all right, guys. Good afternoon, everyone, and welcome to this wonderful webinar of a modern group of institution के द्वारा होस्ट किया गया ये प्रोग्राम। क्रेडिट देता हूं, अपना बच्चा है शांतनु, पुनीत जी, अनिल जी, नेहा मैडम, अर्पिता मैडम, and all the other people who have been monumental in creating this wonderful environment for learning. तो बहुत बार ऐसी बात होती है कि आजकल है ना, वेबिनार इतने चलते हैं कि लोग पक गए हैं। मतलब अभी तो कार्टून एंड मेमेस आने लगे हैं जिसमें एक लेडी लेटी हुई है और बाजू में उसका पति उठा रहा है, बोले उठ जा, वेबिनार खत्म हो गया है। ओके, एंड मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, जब तक लोगों को देखता नहीं तब तक मुझे तो मजा नहीं आता है। इसलिए कल तो मैंने शांतनु को बोला, शांतनु थोड़ा रुकता इसलिए हूं क्योंकि तेरा नाम बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है और कुछ नहीं है, तो उसको मैंने बोला कि भाई सामने कोई तो दिखेगा, बोले मैं दिखूंगा, पप्पा दिखेंगे, पुनीत जी दिखेंगे। मैं तो ठीक है, because I am not a guy who is accustomed to speak when nobody is there. मतलब एक अपने रेडियो जॉकी जैसे लोग होते हैं, वो लोगों को नहीं देखते, उनके सामने एक सिस्टम होता है बोलते हैं, और मैं ऐसा नहीं हूं। बट एनीवेज, सो आई एम जस्ट ट्राइंग दैट वंडरफुल आर्ट, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर गाइस। एंड अपना सेशन स्टार्ट करें उसके पहले मैं 2-3 चीजें क्लैरिटी कर दूंगा। नंबर 1, कोई प्रिस्क्रिप्टिव लेसन्स या प्रिस्क्रिप्शन मैं नहीं देने वाला हूं, रादर बहुत सारे थॉट्स डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज 100% कोई सोल्यूशन हो, रादर सोल्यूशन की दिशा में कदम हो सकता है। तो थॉट शुरू हो सकता है कि भाई कोई ये तरीका कोई व्यक्ति से डील करने का तो ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा तरीका तो व्यक्ति से डील करने का ऐसा हो सकता है। सो समथिंग लाइक दैट। सो इट इज नॉट ए प्रिस्क्रिप्शन बट यू कैन से एक्सप्लोरेशन, दिमाग को खोलने का एक छोटा सा एक्सरसाइज आज होगा, जैसा अपना मानना है। हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर यूज करेंगे। ओके, तो ऐसा कोई दैवी व्यक्ति हुआ जिसको शायद नहीं मालूम पड़ रहा है हिंदी, तो माफ करिएगा, पहले ही अपोलोजाइज कर लिया। ओके, ऑलराइट। सो अनिल भाई मत लिखो, मेरे क्लास में जो लिखता है वो मेरे को पसंद नहीं आता। देखो अपना खाली सॉरी शांतनु हंसने लगा, सी बोले पप्पा को भी मना कर दिया, अरे मत, ये आपकी रिकॉर्ड हो रहा है, ये कर, मेरे को देखो नहीं यार, आपने मस्त जैकेट पहनना है, इट्स नाइस टू सी। I mean, that's the whole idea. So basically guys, let's understand one very simple, very basic concept. हम लोग बात करें dealing with people in difficult situation. Actually बात यहाँ से शुरू हुई थी कि शांतनु ने ये टॉपिक का सीडेशन किया। सीडेशन मतलब शुरुआत, बाद में ऑब्वियसली नेहा मैडम आपका, ये दूसरे मैडम का भी हाथ होएगा इसमें, लेकिन मेरा तो बहुत सिंपल सवाल है कि कब व्यक्ति डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं होता है। वो आज की बात मत करो, आज से 4 महीने पहले भी डिफिकल्ट था, अभी भी डिफिकल्ट है, 4 महीने बाद भी डिफिकल्ट होएगा। सब खुल जाएगा तो सोचेगा सब कुछ सेफ तो होएगा ना, सब बंद था तो सोचता है बाहर निकलना सेफ तो होएगा ना, क्या होएगा इसमें चलता रहेगा। हमारा एक स्टूडेंट है, वो 25 साल से मास्क और ये ग्लव्स वगैरह बनाता है, 25 साल से। तो फरवरी तक उसकी परिस्थिति ये थी कि उसको माल ले लेता था कोई एंड 60 डेज में पेमेंट करता था। फरवरी में उसकी किस्मत ऐसी बदल गई, बोलता है सर मेरे पास इतना एडवांस आ गया है, मैं चूज करता हूं मैं किसको माल भेजूं। आई मीन इमेजिन करो बंदे की लाइफ कैसे चेंज हो गई। सिचुएशंस ऑफ पीपल इज द क्रिटिकल थिंग गाइस, इट इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट। तो पहली एक लेसन हम लोग सब याद रखेंगे एंड वो ये है
कि जब भी किसी के व्यक्ति के साथ मिलते हो तो कृपा करके रिमेंबर दिस लाइन वेरी क्लियरली, फोकस ऑन मी गाइस, डिलीट डिलीट डिलीट। कितनी बार बोला मैं? उंगली से तो दिखा ही सकते हो ना, 3 times. कितनी बार बोला? 3 times। वेरी गुड। डिलीट एनी impression of that person that you have before that. Delete. Number 1. Number 2, मान लो उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी मिले ही नहीं हो, तो कृपा करके खाली ग्लास की माफिक मिलना, ओके, एंड वो भी उल्टा, जिसमें हवा भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करो तब भी हवा भी आएगी। उसका कारण है, जब हम व्यक्ति को सही स्वरूप में अपने तरीके से मिलते हैं, तब जाके अपने को मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति की परिस्थिति क्या है। So the first and most important lesson about understanding people negotiation, first, प्लीज ऑलवेज, मतलब मैं यदि शांतनु मेरे को मिलने आता है और फिर मेरे को बोलता है सर मैं आपको ना नेहा मैडम से मिलाऊंगा, सर मैं आपको बता देता हूँ नेहा मैडम है ना बड़ी स्ट्रिक्ट है, नेहा मैडम ऐसी है, नेहा मैडम वैसी है, ऐसा करके इसने एक फर्स्ट क्लास इमेज खड़ा कर दिया। और जब मैं मिलता हूँ नेहा मैडम बोलती अरे सर वेलकम, आइए प्लीज बैठिए, सर क्या लेंगे, चाय कॉफी? एंड वो बच्चा आता है बोलता है मैडम मेरे को ये परमिशन चाहिए, हाँ बेटा ले लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, टेक इट। मैं उसको देखता हूँ, तू तो बोलता स्ट्रिक्ट है, ये तो बड़ी लिबरल है, सर पता नहीं आज क्या हो गया इनको, लेकिन नॉर्मली तो स्ट्रिक्ट ही रहती थी। दैट्स इट, पूरा का पूरा चीज ब्लास्ट हो गया, मेरा बात करने का अप्रोच भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इसने कुछ फ्रेम किया था, अभी रिजल्ट चेंज हो गया। द आइडिया इज वेरी सिंपल। यदि हम कोई बैगेज लेके, बैगेज मतलब पुरानी विचार को लेके जाते हैं, उस लोड को लेके जाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को हम जजमेंटल हो जाते हैं। एंड जजमेंटल अपने लिए नेगोशिएशन में सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। यदि कोई ऐसा बोलता है कि सफेद कलर का शर्ट पहना है, सफेद कलर का पैंट पहना है, सफेद कलर के जूते पहने हैं, मतलब फाइनेंस का आदमी है, मारवाड़ी आदमी है, चुप ही रहेगा एंड ये अपने को बड़े शांति से तराजेगा, ऐसा करके उसका जजमेंट का एक स्टेटमेंट बना दिया। सेम टू सेम कपड़े को मिलते हैं और वो बंदा मिलता है, हाय सर हाउ आर यू, कैसे हो, देखता है ऐसा करके। मैं बोला सर सफेद कपड़े में तो लोग बड़े शांत रहते हैं। अरे क्या बात करते हो सर, मैं तो जितेंद्र का फैन हूँ इसलिए सफेद पहनता हूँ। अरे वो भाई साहब भी तो जंपिंग जैक होते थे, मैं भी जंप कर सकता हूँ, मैं तो बिंदास रहता हूँ। गेम चेंज हो गया। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, डिलीट एनी टाइप ऑफ फॉल्स इंप्रेशन। गाइस हम में से कितने लोग शिकार हो जाते हैं, हम में से कितने लोग इस चीज के शिकार हो जाते हैं। कस्टमर को मिलने जाना होता है, मिलने जाते हैं उसके पहले को बंदा एक चितार देता है, बोले ऐसा 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 है तो ऐसा होगा, क्यों? अरे एम्प्लॉय को हायर करने से पहले 50 बार हम फ्रेम बनाते हैं। मैं बात करने की फ्रेम बनाता हूं, व्यक्ति की फ्रेम नहीं बनाता हूं। फिर बता रहा हूं गाइस, बात करने की फ्रेम बनाओ। क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा, क्यों ये बात करूंगा, कौन से टॉपिक, उसकी कैपेबिलिटी, उसका काम, उसकी स्किल, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर उस व्यक्ति के बारे में बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। So I always tell people that please delete your 100% of that person. एकदम क्लीन स्लेट की माफिक मिलो। पता है क्या होगा? क्लीन स्लेट की माफिक मिलोगे ना, तो मैं स्वार्थ की बात करता हूं, समझ लो, आई एम एक कैपिटलिस्ट आदमी हूं, स्वार्थ की बात करता हूं। पहला, वो बंदा अपने को कुछ नया सिखा के जाएगा, क्योंकि हम तो खाली है ना, तो वो बंदा कुछ सिखा के जाएगा, 100% सिखा के जाएगा। दूसरा, हमको उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि बायसनेस चला गया है, न्यूट्रल हो गए हैं। एंड एक तीसरी चीज जो और भी इंपॉर्टेंट है, हमको उसके साथ रिकनेक्ट करने का, यदि पहला रिश्ता खराब था तो रिकनेक्ट करने का, एंड यदि पहला रिश्ता अच्छा था तो और बेटर करने का चांस मिल जाता है। वेरी रिसेंटली एक इवेंट के लिए मैं एक जगह पे गया था। जगह में बहुत कम बार गया, इसलिए नाम दूंगा तो पकड़ लोगे, इसलिए मेरे को जगह का नाम नहीं देना है। लेकिन वहां अपना एक अलुमनाई है, एंड जब भी वहां पे एक अलुमनाई है तो हमारे कोर्स में जब था ना, तो सब लोग उसको थूथू बहुत करते थे। थूथू मतलब सर बहुत लोड है, सर बहुत लोड है।
एंड व्हाट हैड हैपेंड टू मी, मेरे को इतनी बार बताया था कि वो बहुत लोड है कि मुझे एक्चुअली वो बंदा लोड लगने लगेगा, बट जैसे मैं सिखाता हूं, मैं ट्राई भी करता हूं प्रैक्टिस करने का, ट्राई, आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, मैं ओपनली बताता हूं, मैं कोई दिव्य आदमी नहीं, आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। तो ट्राई करता हूं। तो मैंने उस बंदे को फोन किया था कि बेटा मैं तेरी सिटी में आ रहा हूं, सर मैं आपको पिकअप करने आ जाऊंगा, ओके। ही डिडंट कम टू पिकअप, उसने बोला पर वो आया नहीं, एंड ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसलिए पिकअप करने के लिए मैंने 2 जन को बोल के रखा था, ओके। फिर वो दूसरे दिन मेरे को मिला, सर सॉरी मैं आपको मिलने नहीं आ पाया। मैं तो कोई बात नहीं बेटा, अभी तो तू आ गया ने। ही स्टिल जो पहले था वैसे ही था, लेकिन बातों बातों में हम लोग फिर गाड़ी में बैठे, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे, एंड जब जाते जाते रास्ते में उसने बोला कि सर आफ्टर द कोर्स एंड सर आई एम नाउ अ फादर ऑफ 2, मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम हुआ था, ये हुआ, उसने पूरी एक हिस्ट्री बताई। ये सुनते सुनते मेरे को लगा कि वो बंदा मेरे को पिकअप करने नहीं आया, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो पिकअप कर, खाली गलती ये थी कि वो मुझे बिंदास बोल सकता था, सर मैं आपको पिकअप करने नहीं आ सकता हूं। आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इज द की, दैट्स इट, ट्रांसपेरेंसी इज द की। मैं पिकअप करने नहीं आ सकता था, इतना खाली बोल देता, बहुत हो गया। मैंने वो भी इसको सिखाया। मैं तो बेटा तू मेरे को बोल देता, सर आपको मना कैसे करता, मैं तो क्यों, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, बोले सर आई नो यू कैन, बस तो फिर स्टोरी खत्म हो गई। बेटा तेरे को जो मालूम पड़ता है कि यदि ये तू मुझे बता सकता था, डन हो गया। So understand this lesson, guys. Whenever you are in any type of people negotiation, wrong word है, any type of negotiation, understand the situation. And understand करने के लिए judgmental मत बनो, पुरानी चीजें डिलीट करो। एक इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनो गाइस, ध्यान से सुनो, देखो इधर बहुत मजा आएगा। हम लोग है ना फॉरेन विजिट में गए थे, फॉरेन विजिट में जाते हैं, ये शांतनु को मालूम है कि फॉरेन विजिट में जाते हैं हम लोग। तो हम लोग गए थे एंड एक बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत बड़ी लाइन थी। अभी फॉरेन कंट्री में क्या इंडिया की इंप्रेशन तो बनानी पड़ेगी, पर हम लोग लेट थे दूसरी कंपनी में जाने के लिए। तो हमारे जो टूर ऑर्गेनाइजर है वो आके मेरे को बोलते हैं कि समीश भाई वी हैव टू गो देयर फर्स्ट बट लाइन इज टू लॉन्ग, तो लाइन को जंप करना पड़ेगा, पर जंप नहीं कर सकते हैं, ये ऐसी कंट्री है जहां पे लाइन तोड़ना गुनाह है। देखिए सर, गुना गुना तेल लेने गया, 2-2.5 लाख रुपया टिकट का खर्च किया है, धंधे को भी छोड़ के आए हैं, यदि फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है तो लाइन जंप करना पड़ेगा। बोले पर समीश भाई अपनी इंप्रेशन, बोले इंप्रेशन बाद में कमा लेंगे, अभी पहले जो लगाया है वो तो कमा ले, वसूल तो कर ले, इससे ठीक है ट्राई एंड जंप द लाइन। तो पक्का, बोले पक्का, तो पक्का, बोले पक्का। वो तीसरी बार पूछ रहा हूं पक्का, बोले आप इतना कंफर्म क्यों करो, नहीं बाद में हम लोग एक्शन में आ जाएंगे, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। वो मेरे को बोला ओके डन। और हमारे बच्चों ने जो पूरा अरेंजमेंट किया, एक बच्चा जो सबसे पहला खड़ा था वो खड़ा रहा एंड खड़े रहते रहते उधर से उसने पेन से कुछ लिखने की एक्टिंग करी और पेन गलती से गिर गई। पेन अपने पास मंगवाने की जगह ये बच्चा खुद पेन के पास चला गया, तो 4 लाइन आगे काट ली। और फिर उसके पीछे दूसरा बच्चा था, वो बोला अरे माय ब्रदर, ऐसा करके उसके पीछे पीछे वो भी चला गया। तो लाइन काट के तुमको अपने पास बोलना चाहिए, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। गाइस ट्रस्ट मी, हम लोग 58 बच्चे थे, 58 बच्चों ने 4 लाइन पहले जंप करी तो कॉन्फिडेंस आया कि साला हम तो कर सकते हैं। वो जो टूर मैनेजर था वो बेचारा पीछे रह गया, बोले आपके बच्चे बहुत होशियार। मैं तो होशियार नहीं, सबको पता चला कि 6-7 लाख फंसे हुए हैं, अभी तो कटना ही पड़ेगा। और 4 लाइन जंप करी। सरप्राइज हो जाओगे, टूर ऑर्गेनाइजर जो सबसे हर बार आता था उधर, वो बंदा बेचारा पीछे रह गया, हमारे 58 बच्चे आगे निकल गया, मैं आगे निकल गया। मेरे को बाहर आके सैल्यूट करता है। तब मैंने उनको एक बात बताई, मुझे साहब एक बात है, रूल अपनी जगह पे बात सही है, लेकिन आप ऐसा ना सोचो कि हम लोग बेकार लोग हैं, हम लोग में बुद्धि नहीं है, हम लोग डफर हैं। बट फैक्ट ये है कि इफ वी फील कि हमारी परिस्थिति ऐसी है तो हम इस तरह से बिहेव करेंगे। बाकी यही बच्चे लाइन में भी खड़े रहेंगे 4 घंटे 6 घंटे। ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं है कि इनको समझ में नहीं है, लेकिन उधर परिस्थिति कुछ और थी तो उनका बिहेवियर कुछ और हो गया, उधर परिस्थिति कुछ और है तो बिहेवियर और हो गया। We have to go beyond the person.
बट उसके लिए बैकलॉग को डिलीट करो, बैकलॉग को डिलीट करो, बैगेज को उतार दो। मेरे को मिलने आया खाली का खाली, खाली का खाली, जैसा है वैसा मिलने आने का, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। एंड तब जाके समझो, मैं बिजनेसमैन की बात करता हूं। खारिया साहब ने बोला कि बहुत सारे लोग बिजनेसमैन भी इस वेबिनार में शामिल हो सकते हैं, बरोबर अनिल भाई, ऐसा आपने शुरुआत में बात बताई। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को बनाने जा रहे हो, होलसेलर बनाने जा रहे हो, उस व्यक्ति को मिलो, उसने 10 साल पहले आपके साथ काम करता था, 10 साल के साथ काम नहीं किया है, ये तो बेकार है यार, वो उसको साथ क्यों मिलने जा रहा है? शांतनु, तेरे को समझ में नहीं है? अरे वो पार्टी के साथ अपना रिश्ता टूट गया था। अरे पापा 10 इयर्स, 10 इयर्स में तो ब्रिज बन जाते हैं, हम तो रिश्ता बनाने की बात कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? चलो तो सही। एंड सर तो बोलते हैं चाय पियो, एक चाय में क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा साथ में एक बिस्कुट खा लेंगे, टोटल टाइम इन्वेस्टेड 1 आवर, एक चाय बिस्किट 1 आवर, ऑल टुगेदर दैट्स इट, 2 आवर्स बहुत हो गया। पता चला ये मीटिंग में गए, एंड मीटिंग में जाते ही वो सामने वाला बोलता है, अनिल भाई आप आए, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो आपका ही वेट कर रहा था, मैं आपसे डीलरशिप कब रिस्टार्ट करूं। ले पता, हम लोग बैगेज लेके चल रहे थे। ये शांतनु की बैच में एक लड़का है, और वो जो बिजनेस करता है उसमें हम लोग को एक एक्सरसाइज दी गई थी कि गो एंड टॉक टू योर क्लोज डाउन कस्टमर्स। उसके फादर बोलते हैं कुछ फायदा नहीं होएगा, बोले पप्पा कॉलेज ने एक्सरसाइज दी है, करने का चांस तो दो। अरे तुम्हारी कॉलेज में क्या यार, कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज देते हैं, ऐसा तो हमको बहुत गाली मिलती है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। बोलते हैं ठीक है। वो रिस्टार्ट करने के लिए गया, 12 साल पुराने कस्टमर को मिला, पुराना कस्टमर उसको बोला थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अस सर, हम लोग आपके साथ इसलिए रिश्ता नहीं तोड़े थे, हमको आपके यहाँ पसंद नहीं था, उस वक्त कुछ डिजाइन का प्रॉब्लम हो गया था इसलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर रिकमिंग, आप बोलो कैसे रिस्टार्ट कर सकते हैं। उसके पापा मेरे को फोन किए, बोले आपके कोर्स का टोटल फी मेरे बच्चे ने 2 कस्टमर से वसूल कर दिया। बोला देखो एक एक्सरसाइज फ्री हो गई। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। हाउ मेनी ऑफ अस कैन एक्चुअली गो बियॉन्ड द पर्सन, कैन गो बियॉन्ड द पर्सन। व्यक्ति को छोड़ो यार, व्यक्ति कोई भी परिस्थिति हो सकता है, खाली ग्लास लेके जाओ, उसमें हवा भी नहीं हो, वैक्यूम, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, रिश्ता बनेगा। एंड रिश्ता बनेगा तो धंधा नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आई ऑलवेज टेल, रिलेशनशिप बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड बिजनेस। ये सीक्वेंस है, इसको जंप नहीं कर सकते। चलो पहला धंधा करते हैं, बाद में रिलेशन बनाएंगे, वो बुलशिट, कौन करेगा तुम्हारे साथ धंधा जब तक रिश्ता नहीं है। तो सेम अप्लाइज टू पीपल इन नेगोशिएशन। ओके, सो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग, डिलीट द ओल्ड थिंग। ओके, मेरा सेकंड फंडा, टाइम बराबर है, सही जा रहा हूं। सेकंड फंडा, देयर इज नो थिंग लाइक पीपल पैटर्न। पीपल पैटर्न, लोग कोई भी परिस्थिति में ऐसे ही बिहेव करेंगे। यदि ये कोई भी व्यक्ति कागज पर लिख के दे देता है, मैं समझता हूं लिखने वाला बेवकूफ है, सीधा लिखने वाला बेवकूफ। अरे सिंपल है, मेरे को एक बात बताओ कि कोई मेरे को ऐसा ठोस लिख के दे सकता है कि कल सुबह शांतनु को दाढ़ी होएगी होएगी, कल स्लीव क्लीन स्लीव नहीं होएगा, ऐसा मेरे को कोई लिख के दे सकता है? चलो लिख के दे दो, लिख के दे दो। कोई बंदा लिख के दिया, मैं उसको बोलूंगा नहीं आंसर रॉन्ग। क्यों? अरे सिंपल है, आज रात को मैं उसकी मदर को फोन करूं, एक मस्त रिश्ता है, दाढ़ी निकलवा दो, कल सेटिंग हो जाएगा। मां का इमोशनल अत्याचार बच्चे पे होएगा, बच्चा कल सुबह क्लीन शीट, बेचारे का एग्रीमेंट पोपट हो गया, पोपट हो गया। अभी मेरे को एक सिंपल चीज है, क्यों? क्योंकि पीपल पैटर्न बहुत डेंजर चीज है। व्हाट इज पीपल पैटर्न? हम अनुमानित कर लेते हैं कि यह व्यक्ति ऐसे ही बिहेव करेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अजम्पशन। आप समझते हैं इस वर्ड को ना, अजम्पशन। ओके, ये लड़का तो बंक मारता ही है, आज भी बंक मारेगा। वो बंक नहीं मारा, आप लोग क्लास में जाके चेक करके आते हो, साला पिक्चर विक्चर तो नहीं देख रहे, बंक नहीं मार रहा है, ये तो नॉर्मली बंक मारने वालों में से।
अरे हमारी गलती है, बच्चे की नहीं। हमारी गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। हमने पीपल पैटर्न्स फॉर्म किया, उसने नहीं फॉर्म किया। तो प्लीज डू नॉट फॉर्म पीपल पैटर्न्स। ये व्यक्ति ऐसे ही बिहेव करेगा और वो ऐसे ही काम करेगा, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। पुनीत जी, आप गाड़ी चलाते हैं, आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा, मुझे मालूम है आप चलाते हैं, बराबर। अंगूठा दिखा सकता है, ऐसा करके यस करने का। मेरे क्लास में ऐसे ऐसे वर्चुअल क्लास में ऐसे यस करने का। ऐसा तनु गाड़ी चलाता है? हाँ सर। अच्छा, तो अंगूठा भी किया, ओके। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अपना शांतनु गाड़ी में यूं जा रहा है, ओके, लगभग 70-80 का स्पीड है, और आगे रास्ते पे से दो स्ट्रेंज व्यक्ति जिनका नाम है समीश और पुनीत, वो दोनों जा रहे हैं, पर वो शांतनु को नहीं जानते, पर मैं और पुनीत फ्रेंड है। एंड ये गाड़ी 70 की गति पे आ रही है, हम दोनों जा रहे हैं। हम दोनों के कंधे पे कंधा हाथ रखा है, यो ब्रो यो डूड, यो ब्रो यो डूड करके बात चल रहा है, विच इज नॉर्मल आजकल की तारीख में। अब शांतनु देखता है कि ये लोग रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, उसकी गाड़ी 70 की स्पीड पे, हम लोग रास्ता क्रॉस करें। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जिब्रा क्रॉसिंग का कंसेप्ट बाहर की कंट्री में, अपने देश में तो जो अपन क्रॉस करे उसको जिब्रा बना दिए हम लोग। तो ये बंदा तो ऐसे रास्ते में से क्रॉस कर रहे हैं। अब शांतनु के पास चॉइस है, एक चॉइस, कि ये दोनों को पार हो जाएंगे ऐसा अज्यूम करके पीछे से कट मार के निकल जाए, अपनी गाड़ी स्लो नहीं करेगा। एंड दूसरा चॉइस है उधर के उधर रुक जाएगा। अपन शांतनु को पूछते हैं कि तू बेटा क्या करेगा, पीछे से कट मार के निकल जाएगा कि गाड़ी उधर रोक लेगा, बता। I'll try to stop it, अगर नहीं रोके तो ट्राई टू स्टॉप इट, नहीं तो मतलब उड़ा देगा क्या हम लोग को, है? गाइस, ये शांतनु नहीं, इस दुनिया के जितने भी बच्चे हैं जो गाड़ी चला रहे होंगे, यदि उनको दूसरे की जान प्यारी है और खुद की जान प्यारी है तो ब्रेक मारेगा। एंड उसमें उसका चॉइस नहीं है, हम दोनों का चॉइस है, मेरा और पुनीत जी का। उसका कारण बताता हूं। हम दो ह्यूमंस हैं, मतलब दो ह्यूमन मतलब दो खोपड़ी, पर दो खोपड़ी सोच सकते 50 तरीके से। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि चलते चलते हम दोनों ऐसे जा रहे थे, डायरेक्शन ये था, लेकिन गाड़ी यूं आते हुए देख के हम दोनों पीछे भी जा सकते हैं, बहुत करीब आ गई, तो पीछे जा पीछे जा पीछे जा, ओके। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही खाली पीछे जा, पुनीत आगे निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है पुनीत पीछे जाए, मैं आगे निकल जाऊं। और ऐसा भी हो सकता है दोनों आगे निकल जाए। एंड ऐसा भी हो सकता है दोनों क्रॉस में जाए। इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बेटा गाड़ी चला सकता है? बताओ। नहीं चला सकता है। ये तो क्या, उसके पापा अनिल भाई भी नहीं चला सकते, उसके चाचा अरुण भाई भी नहीं चला सकते, कोई नहीं चला सकता, दुनिया का कोई बंदा नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि यदि वो गाड़ी पीछे से निकालता है, इसको बोलते हैं उसने अज्यूम किया कि पुनीत और समीश ऐसे क्रॉस करेंगे, विच इज डेंजरस, विच इज डेंजरस इन ए पीपल नेगोशिएशन। वैसे मैं पीपल नेगोशिएशन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि नेगोशिएशन ह्यूमंस के साथ मतलब लोगों के साथ ही होता है। कभी भी ऐसा सोचना नहीं गाइस कि आपको लोगों का अजम्पशन पीपल पैटर्न मालूम है। कोई पेरेंट आपको मिलने आता है, नेहा मैडम, तो आके बोलता है कि मैडम आप तो बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत मस्त पढ़ाती हैं, आपके यहाँ मेरा बच्चा आया तो क्या बन गया, देखो ये। उड़ना शुरू नहीं करना, क्योंकि वो आपको बलून में लेके जा रहे हैं, प्लेन में लेके नहीं जा रहे, बलून में। आप समझ गई? और उसकी जो बलून फोड़ने की जो वो होती ना पिन, वो उनके पास ही है। वो ऐसा लेके गए, फट भप दे के अपने को गिराया। पीपल पैटर्न्स। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं पीपल पैटर्न्स ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो तब मैं दूसरा लाइन बोलता हूं, जब कोई बोलता है आपके बारे में अच्छा, सुन लो, फील गुड। उड़ना भी नहीं, नीचे भी नहीं उतरना, जहां पे हो वहां पे रहोगे, तो इसका मतलब पीपल पैटर्न को आपने समझा है।
अनिल भाई आपका जो सैनिटाइजर है वर्ल्ड नंबर 1 है, ऐसा करके एक बंदा इनको बड़ा तारीफ का फोन करता है, ये खुश हो गए। तो ये बोलेंगे भाई तो तू लास्ट टाइम 50 डब्बे लिए थे तो इस बार 60 डब्बे ले ले। नहीं इस बार तो मैं ऑर्डर देने ही वाला नहीं था, मैं तो खाली आपको ऐसे ही फोन किया। तो साला इतना तारीफ किया, आधे घंटे से क्या कर रहा था? पीपल पैटर्न्स, वो आपसे बात कर रहा था और फिर धीरे से बोलेगा सर आप तो 60 डब्बे की बात करें, मैं तो आपको ये फोन करने के लिए बोला कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, 2 महीने के बाद कर पाऊंगा, सॉरी सर, फोन काट दिया। दूसरी बार बेचारे फोन लग रहे, बंदा फोन नहीं उठा रहा है, स्टोरी ओवर। पर मैंने यदि उसको ऐसा मान लिया कि देखो मेरे को चढ़ा रहा है ये वो, हमने पीपल पैटर्न बना ली गाइस ना। स्पेंड टाइम नोइंग विद द पीपल, उनके साथ समय स्पेंड करो एंड वो स्पेंड करते करते आप इतने तैयार हो जाओगे कि आप जब कभी कोई नेगोशिएशन में जाओगे तो आपका माइंड भी तैयार हो जाएगा, पीपल पैटर्न नहीं बनाएगा। एक इंटरेस्टिंग वाकया है, कभी शांतम तेरे साथ ऐसा हुए तो मेरे को बताना, बहुत मस्त वाकया है। पुनीत जी सुनना, इतना डेंजर सिचुएशन था, आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि क्या बात करते, ऐसी भी होता है। एक फादर अपना बच्चे को लेके पुणे से बॉम्बे आया, पुणे से बॉम्बे, हाँ तो मतलब जेन्युइन होएगा, हमारे ऑफिस में आया, हमारे जूम एक ऑफिस है वहां पे, आके एंट्री लेके ऐसा चपटी बजा के, इधर दलाल कौन है? दलाल। अरे मैं बोला यार थोड़ा इज्जत से तो बोलो भाई, प्रोफेसर हैं कुछ तो, पर चलो कोई बात नहीं है। एंड फिर उधर बिठाया, मैंने उनको बोला बैठो, बैठा। बैठने के बाद उसने बोला कि ये मेरा बच्चा है, अब इसको एडमिशन दे दो। एडमिशन दे दो? हमारे एक प्रॉपर प्रोसेस है, फॉर्म भरो, इंटरव्यू होगा, मतलब ये क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं आपका वेबसाइट देखा, वेबसाइट पे जितना फी लिखा है वो मैं फी लेके आया हूं। तो आप सीरियसली जो वेबसाइट पे लिखा वो फी आप लेके आए? हाँ 100% आप इसको एडमिशन दे दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। सर एक बात बताइए सर, आप क्या देख के आए, आप क्या पढ़ के आए हो, आप मेरे को थोड़ा बताइए तो सही। मैं आपका वेबसाइट देखा, उसके ऊपर लिखा है 20,000। ये मेरा जीएफएमबी 1 और 2 की बात है, अपना शांतनु के वक्त तो चेंज हो गया था, जीएफएमबी 3 के बाद ही चेंज हो गया था। उस वक्त है ना, the fees was in dollars because it was at the Dubai campus. तो वो $20,000 पड़ा ही नहीं, 20,000 पढ़ के आ गया, तो जेब में 20,000 रुपया लेके आया और टेबल पे रख के बोलता है ये लो फीस दे दो एडमिशन। मैं बोला अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? बोले 20,000 तो बोला है आपने। मुझे सर पूरा पढ़ो, $20,000 है। डॉलर कभी तो देखो तो सही, अब डॉलर वॉलर छोड़ो, अब सेटिंग करो। अरे सेटिंग करो, क्या बोल रहा है बंदा? बट आई शुड हैव गॉट एंग्री विथ हिम? नो 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 मैडम, नहीं, बल्कि वो इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं है, उसको ये भी नहीं मालूम कि वो क्या बात कर रहा है। तो उसके साथ गुस्सा होने की बजाय मेरे को सहानुभूति थी। मैंने उनको बोला कि भाई साहब एक काम करो, पहले तो आपके 20,000 आपकी जेब में रखो और इसको भी बचा के रखो। और फिर मैंने उनको थोड़ा समझाया, ये किया और फिर वापस भेज दिया। नाउ देयर इज अ चॉइस आई हैव टू मेक कि क्या मेरे को उस बंदे को रिडिक्यूल करना चाहिए? अरे वो इग्नोरेंट है, उसके साथ ये नॉर्मल है, उसको मैं ऐसा समझूंगा तो ये गलती मेरी है, उसकी नहीं है। तो नोइंग पीपल पैटर्न्स is a very dangerous thing. We should not assume people by people patterns. हर व्यक्ति नया, हर रूप रंग नया, हर तरीका नया, तो हम उस व्यक्ति के साथ दिल से कनेक्ट कर पाएंगे एंड फिर नेगोशिएट करने बड़ा आसान हो जाएगा। So that is my second fundamental. तो पहला था delete the whole thing, delete all concept. अनिल भाई याद हो गया? बोलो पहला चीज। हाँ बरोबर याद हो गया, लिखने का जरूरत नहीं पड़ा ने, देखा? डिलीट कर डालो, पहला चीज पुराना डिलीट कर डालो। कोई भी व्यक्ति नया मिलता है एकदम फ्रेश मीटिंग, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश। बहुत बार क्या होता है कि कभी कोई स्टूडेंट मेरे को मिलता है ना, मेरे को बोलता है सर आपको याद है 4 साल पहले ना मैंने ऐसे गड़बड़ किया था। तब मैं हंसता हूं, देख 4 साल पहले तू स्टूडेंट था, अभी तू रिस्पॉन्सिबल फैमिली बिजनेसमैन हो गया, तो उस वक्त तू जो कांड किए ने उसको तू छोड़ दे। अभी तू बोला सर अभी एकदम डिफरेंट, दैट्स इट।
अपने बच्चे का मैंने वीडियो देखा, वेरी रिसेंटली फेसबुक पे आया, मैं वो वीडियो देख के उसको मैसेज किया, मैं तो बेटा तेरा क्या वीडियो आया है? बोलते थैंक यू सर। सर आपको मैं याद था? मतलब याद था, तूने इतने इतने कांड किए, मैं इसको लिख के भेजा थोड़ा ऐसा मस्ती में। उसका जवाब आया, बट सर अभी मैं सुधर गया। मैंने उसका जवाब लिखा, मैं तो बेटा तू सुधर नहीं गया, तू बेटर हो गया, पहले से बेटर हो गया। यू आर नाउ ए इम्प्रूव्ड बिजनेस पर्सन एंड दैट इज व्हाट इज अवर लेसन। हम सबको इस चीज को याद रखने का है, हम सबको याद रखने का है। एंड जितना याद रखेंगे ट्रस्ट में बहुत फायदा होगा। हम लोग ऐसे ही कनेक्ट करते जाएंगे लोगों से एंड नेगोशिएशन बिकम लाइक मक्खन। ऐसा स्मूथली अपन बात करना शुरू कर देंगे, एंड हो जाएगा, पता चला या खत्म हो गया बात अपना। ओ यस एब्सोल्युटली खत्म हो गया, दैट्स इट। ओके, सो डिलीट द होल ओल्ड कंसेप्ट। जो भी कोई व्यक्ति डिलीट पुरानी बात है। एंड एक दूसरी बात मैं बताता हूं, ध्यान रखना, 3 प्रकार के लोग होते हैं, ए, बी एंड सी। पहली प्रकार का लोग यानी कि ए टॉकिंग टू बी अबाउट ए। वर्ड को समझा कि नहीं समझा? मेरे एक वर्ड को समझ, शांतनु आवाज बराबर आ रही है, ऐसे करना, हाँ क्विकली। ओके, ए टॉकिंग टू बी अबाउट ए, अपने बारे में बात करते जाता, अपने मुंह मियां मिट्टू, टेक्निकली दोस टाइप ऑफ पीपल। दूसरा कैटेगरी का पीपल, ए टॉकिंग टू बी अबाउट बी। मैं अनिल भाई को मिलता, मैं पुनीत भाई को मिलता, तो उनके बारे में बात करता हूं और उनको थोड़ा एंगेज कर देता हूं, तो उनके साथ मेरे को थोड़ा नया जानने को मिलता है। तो पहले वाले को अपन बोलते हैं देयर, मतलब वो कोई कॉन्वर्सेशन में आता ही नहीं। ओके, दूसरे वाले को बोलते हैं कॉन्वर्सेशनलिस्ट, मतलब वो बंदा जो बात करा लेता है। एंड तीसरा सबसे वाहियात, ए टॉकिंग टू बी। हाँ पुनीत भाई समझ गया है, देखो उसके मुंह का स्माइल मेरे को पकड़ में आ गया। ए टॉकिंग टू बी अबाउट सी, इसको अपन बोलते हैं गॉसिप। ये गॉसिप है ना, करो जिसको करना है करो, मेरे को कोई वांदा नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखना कि जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो कभी हम भी तीसरे व्यक्ति हो सकते हैं। तो मेहरबानी करके डोंट टॉक अबाउट दैट थर्ड पर्सन। तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी व्यक्ति के सामने किसी भी व्यक्ति की गलत छवि नहीं खड़ी करेंगे। एंड जब गलत छवि नहीं क्रिएट करेंगे तो डिलीट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर हम कभी कभार सामने वाले के व्यक्ति के सामने ऐसी गलत छवि खड़ी कर देते हैं और फिर उसको डिलीट करते करते हमको 4, 5, 10, 15, 20 साल लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं इमेज बिल्डिंग। डोंट डू दैट गाइस, डोंट डू दैट, गलती से भी नहीं करना। 2 हाथ जोड़ कर नम्र अनुरोध करता हूं, प्लीज किसी की भी व्यक्ति की गलत पैटर्न्स या किसी के बारे में गलत बायस फॉर्म नहीं करना, एंड किसी को फीड भी नहीं करना। गलत दोनों है, किसी को फॉर्म भी नहीं करना भी नहीं। एनीवेज, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नेवर अज्यूम पीपल पैटर्न्स। किसी भी व्यक्ति से कभी ऐसा अज्यूम नहीं करना, ऐसा ही बिहेव करेगा। आपको पता है नेहा मैडम, एक इंटरेस्टिंग चीज है, मारवाड़ी फैमिली में आप जब खाना खाने जाते हो ना तो पापड़ एंड में आता है, लेकिन गुजराती फैमिली में पापड़ पहले आता है। हाँ जी, अब मैं रहा गुजराती, गया मारवाड़ी के यहां खाने के लिए, जस्ट इमेजिन, तो उन्होंने पापड़ दिया ही नहीं, एंड में दिया जैसे आया। और ऑब्वियसली हम लोग क्या खाना खा रहे तो ऐसा तो बीच में नहीं, मेरे को ये दो ये दो, इट्स लाइक अ वेरी बैड मैनर्स। तो मतलब बाद में आया, तो माय वाइफ इज लुकिंग एट मी, ये लोग पापड़ एंड में दिए। मतलब शांति रख, पहले पूछ तो सही कि एंड में क्यों दिया। बोले इसमें पूछने का क्या, पूछ तो सही। एंड जैसे पूछा उन्होंने बोला सर एक बात है, इमीडिएटली आई एम सॉरी, मुझे पहले पूछना चाहिए था कि आप लोग गुजराती से तो पापड़ पहले चाहिए कि नहीं, हमारी मिस्टेक हो गई, पर हम लोग पापड़ एंड में खाते हैं, आई एम रियली सॉरी। एंड देन शी रियलाइज्ड ओके दैट इज द वे इट इज। गाइस याद रखने का पॉइंट है,
हम कोई नए कल्चर में जाते हैं, कोई नए व्यक्ति के पास जाते हैं, कोई नए विचार के पास जाते हैं, कोई नई सिचुएशन में जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को समझो तो सही एंड फिर एक्ट करो. So that was my second, people patterns assumption. Third and final point. I have some time. Third and final point. Okay, and that is whenever dealing with people in a situation, once at least try and be in their situation mentally. जिसको अंग्रेजी में एक शब्द बनाया है एम्पथी. एम्पथी. यदि रात को 9:30 बजे एक लड़के का फोन आता है, मैं कोई कारण से व्यस्त हूं, मैं नहीं उठाया, तो मैंने उसको मैसेज किया कि बेटा क्या इंपॉर्टेंट है एकदम. उसका मैसेज आया रात को 11:30 बजे, यस सर एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट. अब रात को 11:30 बजे एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट तो जेन्युइन होएगा. मैंने उसको बोला प्लीज कॉल. मेरी वाइफ बोलती है कि रात को 11:30 में तो कुछ बहुत बड़ा मसला हुआ होगा. फोन करके बोलते हैं सर आपके घर का एड्रेस दो. ने बोलो क्यों, क्या हुआ, तू घर पे तो नहीं आ रहा अभी रात को 11:30 बजे? नहीं शादी फिक्स हो गया, शादी का कार्ड भेजना है, बस यही काम था. अरे यार तू मैसेज से नहीं निपटा सकता था? रात को 11:30 बजे फोन करके बोलता है कि एड्रेस दो, शादी का कार्ड भेजने का है. पागल है? आई मीन इज ही मैड और व्हाट? बट एक्साइटमेंट उसके पॉइंट से देखो तो ऐसा लगता है उसने अपने पापा को बोला कि पापा आई टॉक टू सर एट नाइट एंड सर हैज गिवन मी द एड्रेस एज अ कंफर्मेशन. आई हैव टॉक टू हिम. पूरा उनका रोल ही चेंज हो गया, पैटर्न ही चेंज हो गया. थिंक उसके स्थान पे जाके खड़े रहो. एक लड़का आता है डेस्परेट आपके सामने, पुनीत सर प्लीज एडमिशन करा लो, पुनीत सर आप एडमिशन नहीं कराओगे हालत बहुत खराब हो जाएगी, ये वो. आप नहीं दे सकते हैं एडमिशन क्योंकि शायद उसके नंबर बराबर नहीं है, या फिर समझो वो पास ही नहीं हुआ है, या जो भी मसला है. मना करेंगे, लेकिन ये उसके साइड जाके बेटा क्या कर रहा है, कौन है, और कोई आया है फैमिली में से आया, टिकना फलाना, 15, 20, 25 क्वेश्चन पूछेंगे. हमको उसके साइड का स्टोरी मालूम पड़ेगा, उसका पोजीशनिंग मालूम पड़ेगा, एंड फिर हम धीरे से उसको बता पाएंगे कि बेटा एक काम करते हैं, लेट अस वेट फॉर सम टाइम, मैं तेरे को 1-2 दिन में जवाब देता हूं. ऐसा मुंह पे फट लेके बोल दिया नहीं मिलेगा एडमिशन, अरे बच्चा मायूस हो जाएगा. आप उसकी उम्मीद हो, आप उसके लिए एक इंस्पिरेशन हो, आप उसका एस्पिरेशन हो, वो आपको तक पहुंचना चाहता है, और आपने ऐसा हटके रूड कर दिया, बंदे को लगा क्या इतना काय का चर्बी है, तू गाड़ी निकाल के बाहर आ, मॉडर्न के बाद तो तू भी खुला मैं भी खुला, पत्थर लेके गाड़ी को फेंकूंगा. यू नो लाइक पीपल गो मैड. आजकल के यंग जनरेशन में हो जाता है, पीपल गो मैड. तो क्यों गाइस, रादर उसके साइड एक बार जाएंगे, शांति से बैठेंगे और 1 सेकंड में उसके लिए बात करेंगे ना, 5, 10, 15. अभी मेरे को एक वाक्य याद आ रहा है. मैं और अपना शांतनु हम लोग बस में वापिस आ रहे थे आफ्टर द रिलायंस फैक्ट्री, मेरे को थोड़ा बहुत याद है तो ऐसा ही है. एंड फिर उसने मेरे को अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताना शुरू किया था. तो आई थिंक वो 2-2.25 घंटे का जर्नी है फ्रॉम रिलायंस जामनगर टू राजकोट. एंड उसमें लगभग 40 मिनट इसने ले ली थी, 40 मिनट. उसके बाद हमारा बीच में कहीं आया था तो ब्रेक लिया था, हम लोग चाय पीने के लिए उतरे थे, पर 40 मिनट इसने ले ली थी. वो 40 मिनट में ही स्पोक मैक्सिमम, आई वाज लिसनिंग. एंड जब हम लोग मॉडर्न का प्लांट विजिट करने आए थे, उधर अपना प्लांट नहीं सॉरी अपनी नंदिनी का जो प्लांट विजिट करने आए थे, तो इसने जितना बोला था मेरे सामने फ्लैश के माफिक आया, मेरे को चीज कंप्लीट हुई. नाउ उसके हर क्वेश्चन का मुझे रीजन मालूम पड़ा. That's it. क्वेश्चन का हर रीजन मालूम पड़ा. समझो मेरे पॉइंट को गाइस. क्वेश्चन का रीजन, प्रश्न क्यों पूछा था उसका कारण मालूम पड़ा. प्रश्न पूछा था उससे मैं खुश नहीं हुआ, प्रश्न क्यों पूछा उसका कारण मेरे को मालूम पड़ा. एंड दैट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग पीपल. एंड वंस यू अंडरस्टैंड पीपल गाइस, नेगोशिएशन करना ही क्यों है, फिर तो नेगोशिएशन करना ही क्यों है. आप उसके साथ बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, नेगोशिएशन अपने आप ही क्लोज हो जाएगा. यदि हम व्यक्ति को नहीं समझेंगे तो नेगोशिएट करना है ना. यदि व्यक्ति को समझेंगे तो
That's it. You don't have to negotiate. For example, if I start understanding your scenario and if I start understanding your condition, do I have to actually negotiate? No. I have to simply talk. I have to simply discuss. That's it. And काम हो जाएगा. लेकिन मैं उस व्यक्ति को समझ ही नहीं पा रहा हूं, वो समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए गड़बड़ हो रही है. Anyways, so मेरा आइडिया ये था, मैंने आपको बोला था कि मैं 40 मिनट करीब करीब लूंगा और मैंने पूरा 40 मिनट वसूल किया. मैंने आपको प्रॉमिस किया उतना मैं वसूल करेगा, बरोबर. तो आपने मेरे को 408 पे चांस दिया था बोलने को, अभी 445 हुआ. मैं ऑलमोस्ट क्लोज टू द एंड ऑफ माय वेट आप आपका ऑन मत करो, अभी माय पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन का ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड. खाली एक 3 चीज बताना चाहता था, वो मैं बता दी. लास्ट पॉइंट था कि सामने वाले व्यक्ति का एम्पैथी को फॉलो करते जाइए, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. एक चौथा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट खाली नेगोशिएशन में यूज नहीं होता है, बट वो बहुत सारी जगह पे भी यूज होता है अलग अलग तरीके से. तो मैं उस कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा एंड देन आई विल एंड माय सेशन, एंड दैट इज the level of openness, transparency. Level of openness, transparency. नहीं यार शांतनु, तू मेरे को फोन करेगा तो मैं तेरे को सब कुछ बता नहीं पाऊंगा. I will not be able to tell you. फिर जब मेरे को फोन करता है, हाँ बोल, हाँ ओके, नहीं, no that is not a good topic, change the topic. शांतनु बोलता है, पर सर आप बताओ कौन से टॉपिक पे बोलोगे, यू गिव मी सम मोर ऑप्शंस. अबे तू बोलने, लेकिन मैं बोल ही नहीं रहा हूं, और फिर जब ये बरोबर काम नहीं करता है, शांतनु को कुछ आता ही नहीं है. अरे तूने बोला नहीं, ये तेरा गलती है, शांतनु का नहीं, तेरे को ये समझना चाहिए था. तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ हाईएस्ट नेचर, ओपननेस ऑफ हाईएस्ट नेचर. कभी कभी ये मेरे को फोन करके बोलता है ऐसा है, करेक्ट, और मैं चाहे उसको सवाल पूछता हूं, सवाल पूछते जाता हूं, क्लैरिटी मिलती जाती, आई बिकम बेटर. व्हेनेवर डीलिंग विद पीपल, प्लीज ट्राई एंड सी ओपन एंड फेयर कम्युनिकेशन जाता है, ट्रांसपेरेंसी होती है हर एक्शन में, हर बिहेवियर में, हर वो चीज जो सामने वाले व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कराता है. कस्टमर है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन. स्टूडेंट है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन. मिनिस्ट्री है या गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन. क्यों? क्योंकि हमको तो उनके साथ भी डील करना पड़ता है, बिकॉज वी हैव पार्ट ऑफ दिस ग्रांट्स एंड ऑल दैट थिंग. या फिर आपने बताया था वो क्या, यूनिवर्सिटी के साथ डील करते हो, ट्रांसपेरेंसी. तो बंदा ऑटोमेटिकली सिचुएशन से बाहर निकल गया. क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, सर ये हमारी परिस्थिति है. आई वॉज इन पंजाब, एक इवेंट में गया था, ब्रिलियंट इवेंट था, तो उधर मैं गया था. एंड जब मैं उधर इवेंट कर रहा था, इवेंट खत्म किया, एंड इवेंट खत्म करने के बाद अपने कुछ अलुमनाई मिलने आए थे. तो मैंने वो क्या कहते हैं, जैसे अपनी कॉलेज होती है, जैसे मॉडर्न है, तो शांतनु क्या करता है, सर अपन खाने के लिए जाएंगे. तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई अपने 4-5 अलुमनाई मिल के जाते हैं. दैट इज हाउ वी नॉर्मली डिड, लास्ट टाइम आल्सो वी डिड दैट वे, राइट, बराबर. तो इस बार ये सेम टू सेम हुआ था. तो जैसे हम लोग गए, तो वो इवेंट खत्म होकर हम लोग जा रहे थे, जाते जाते बीच रास्ते में मैंने बोला कि यार एक बात बताओ बेटा. बोलते क्या सर, ये आज जो तुम्हारे पार्टिसिपेंट थे, वो 2-2 मिनट पे उन लोग मतलब व्हाई वर दे आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट फॉरेन. उसने एक मस्त चीज बताई. बोले सर आप किधर हो? मैं किधर हूँ? बोले आप जलंधर में हो. आप पंजाब के उस हिस्से में हो कि कन्नेडा इज एक्चुअली लाइक अनदर पार्ट ऑफ पंजाब. तब मैं हंसने लगा. बोला हाँ, बोले यहाँ से हर बंदा पंजाब से कनाडा जाता है, तो इनके दिमाग में सिर्फ वही चीज चलती रहती है. तो इनको जब हम एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस के लिए ड्राइव करते हैं, तो इनके दिमाग में आता है हाँ ये सब का कोई महत्व नहीं है, अपने को तो पढ़ लिख के कनाडा जाना है. The moment I started knowing that, my understanding about those people changed. The understanding about those people begin to become better, and that is the key to the whole thing. Okay. Anyways, so please practice openness and transparency. Please practice no people patterns. Assumption is shit. ओके, एंड पीपल पैटर्न फॉर्म करना ये डेट्रीमेंटल है. सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचो, एम्पैथी करो सामने वाले व्यक्ति के. ये 3-4 चीजें अपन प्रैक्टिस करेंगे, टू बी वेरी प्रिसाइज 4 चीजें प्रैक्टिस करेंगे, हम व्यक्ति को ज्यादा पहचान पाएंगे. वी विल बी एबल टू पुल थ्रू थिंग्स इन अ मच बेटर मैनर. ओके, विद दोज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच शांतनु. इट वाज नाइस हैविंग this webinar. I hope you enjoyed it. Anil bhai, I hope you enjoyed it. And Puneet ji, thank you very much for being there.
And Neha madam, over to you. I hope you enjoyed this session, and my dear lot, participants, sir. अब जहाँ कहीं पे भी हैं, जिधर भी हैं, I hope you enjoyed and wish you all the best, guys. Have a great time in life and do every good thing for you for you and your family that you can. Thank you. God bless you. Thank you. Have a great time, guys. Thank you so much, sir. It was truly very energetic, amazing, and very interesting, sir. And I'm really sure, I mean, the real life examples and your knowledge and guidance which you have shared with us today is really going to useful for all of us. Because we all are always surrounded by the people. And it is really important to understand people, right? Correct. So, sir, it is not yet finished from our side because we really would like to listen you more, sir. So we currently have 260 participants with us, and Okay. chat box is full with the compliments for you, sir. Thank you. We do have some questions also, sir. So Please. with your permission, I would like to ask you some questions, sir. Yes. Please. Shall I please, start, please, sir? please. Right. Yes. So the first question, sir, that what is the most complex thing in negotiation and how to deal with it, sir? The most complex thing in negotiation is trying to understand the alternatives the other person has. सामने वाले व्यक्ति के पास कितने ऑप्शंस हैं और हमारे पास कितने हैं वो तो हमको मालूम ही है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास यदि ऑप्शंस हमारे से ज्यादा हैं तो उसका नेगोशिएटिंग पावर हमसे ज्यादा है. इट्स एज सिंपल एज दैट. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग कोई जगह पे जाते हैं, एक एग्जाम्पल, शांतनु आता है यहाँ पे बॉम्बे में रहने के लिए होटल में रूम ढूंढ रहे हैं. ओके, उसने यदि पहले बुकिंग करके रखा है तो बात बराबर है, लेकिन समझो बुकिंग नहीं किया है तो उसके पास 4-5 ऑप्शन है, एंड होटल वाले के लिए ये एक ही बंदा है तो होटल वाला कोई भी भाव देके एक बार इन करेगा. लेकिन समझो कि उस वक्त कोई बहुत बड़ा यहाँ पे ज्वेलरी फेस्टिवल चल रहा है जिसमें सबकी सब होटल्स लार्जली सोल्ड आउट है, तो अपना शांतनु उनको बोलेगा सर 15,000 पर वन डे, वो बोलेगा सर यू पे 25, देन आल्सो वी डोंट हैव अ रूम सर, एंड आपको ये एरिया में और कोई दूसरी रूम मिल जाए तो मेरी होटल आपके नाम कर दूंगा. ओके बॉस, नाउ शांतनु नोज इज इन फॉर अ बिग शिट. इसका पॉइंट क्या है, इसको सामने वाले के ऑप्शंस मालूम नहीं है. आपको जब भी सामने वाले के ऑप्शंस मालूम होंगे आपका नेगोशिएशन पावर चेंज हो जाता है. यदि मालूम है तो इट्स गुड, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट दैट. इसलिए उन्होंने बोला कि सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है, नोइंग द अदर साइड्स ऑप्शंस. यस. Thank you so much, sir. It was really nicely explained. Sir, the next question is that after Ji. pandemic, we are living in a very unpredictable manner. So, Correct. right, what negotiation strategy would you suggest, sir, after the post-COVID? मेरे को एक बात बताइए नेहा मैडम, बिफोर कोरोना आया था कितना प्रिडिक्टेबल था? नहीं था सर, बट अभी मैंने कुछ नहीं कहा, आपने आंसर दिया. देखो भाई, मैं कुछ नहीं बोला है. नहीं, मेरा एक कजिन है, वो ना स्टॉक मार्केट में है, तो हम लोग कभी कभार बहुत डिस्कशन करते हैं, मजा आता है. तो मेरे को आके बोलते हैं कि जब, मतलब ये तो दिसंबर की बात है, मैं उसको बोला कि भाई स्टॉक में पैसा लगाना कि नहीं. बोले भाई लगाओ, लेकिन मार्केट बड़ा अनसर्टेन है. दिसंबर 2019 में. मैंने जून 2020 में पूछा, मैं तो पैसा लगाऊं कि नहीं. लगा, पर मार्केट अनसर्टेन है. साला 2019 दिसंबर में मार्केट अनसर्टेन है, दिसंबर जून 2020 में अनसर्टेन है, तो सर्टेन कब था? पॉइंट ये है मैडम, पोस्ट कोविड प्री कोविड की बात नहीं है. द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी इज द सेम एवरीवेयर, नंबर 1. नंबर 2, एवरी पर्सन, क्या बोला मैं? एवरी पर्सन. क्या बोला? एवरी पर्सन. करेक्ट. मैं 3 बार इसलिए हमेशा कोई चीजें बोलता हूं वर्चुअल क्लास में. रियल क्लास में तो इनको बुलवा ही लेता हूं, लेकिन वर्चुअल क्लास में 3 बार इसलिए बोलता हूं कि याद रह जावे. हम सब इस पेंडेमिक से जब पास होएंगे तो थोड़े बहुत इंजर्ड होएंगे. इंजर्ड का मतलब वी विल बी हिट सम लॉस, कुछ को ज्यादा कुछ को कम, लेकिन होगा जरूर. तो आप जब पोस्ट कोविड टाइम सामने वाले व्यक्ति का परिस्थिति समझ सकते हैं कि भाई ये हायर लॉस कैटेगरी में है कि लोअर लॉस कैटेगरी में है, उस हिसाब से आप उसके साथ नेगोशिएट करें, उस व्यक्ति को समझ के नेगोशिएट करें. पूरा टाइम नहीं है अभी उतना, पर मैंने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन किया था
कि कोई भी व्यक्ति को हम कुछ क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो आई कॉल दैट 4 क्वाड्रेंट: ओपन, क्लोज, बैडली हिट, नॉट सो बैडली हिट. ओपन यानी वो लोग जो इधर से प्रैक्टिकली इम्यून रहे. इम्यून मतलब इनको असर नहीं हुआ है, दवाई मैन्युफैक्चरर है, ये हैं वो हैं, ऐसे कुछ कुछ लोग इसे इम्यून रहे. देखो अनिल भाई हंसने लगे, दवाई बोला तो हंसने लगे. नहीं बराबर है, हमारे कुछ बच्चे उस कैटेगरी में हैं. कुछ क्लोज कस्टमर, क्लोज मतलब केयरफुल रहेंगे, वो इतनी बुरी तरह से नहीं पीटे गए हैं. थोड़ा माल लेंगे, थोड़ा पेमेंट करेंगे, थोड़ा सेल करेंगे, थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा 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 ऐसा चलता रहेगा. दैट विल बी देयर स्टोरी. देन आता है नॉट सो बैडली हिट. इसका मतलब क्या है कि समझो कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो 50-60% तक काम हो गया है, बाकी का खुद का फंडिंग भी अरेंज्ड है, तो धीरे धीरे काम करेगा. या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट में है जहां पे किसी को शामिल करके कंप्लीट कर सकता है, तो ट्राई करेगा बचने का. Now comes 4th category, badly hit. Travel, tourism, hospitality, etc. ये सब हमारे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे तो हर कैटेगरी के बच्चे हैं. तो ये लोग बैडली हिट में आते हैं. अभी आपका नेगोशिएशन स्टाइल ओपन वाले के साथ एंड बैडली हिट के साथ सेम नहीं हो सकता है. यस और नो? सेम नहीं हो सकता है. दैट्स द आंसर. कि सामने वाले व्यक्ति को पोस्ट कोविड में समझना पड़ेगा कि भाई वो बैडली हिट है, नॉट सो बैडली है, क्लोज है कि ओपन है. तो ओपन है तो उसका कैटेगरी डिफरेंट, इनमें से सबका कैटेगरी डिफरेंट. लाइक दैट प्लीज. Very true, sir. थैंक यू. Thank you so much. Sir, we would like to know that what are the techniques to deal with the difficult people to achieve the win-win position in negotiation? I told you first, I'm telling again. Yes, yes. There are no techniques. Okay? किताबें प्रिस्क्राइब जरूर करती हैं, लेकिन जो किताब प्रिस्क्राइब करती हैं वो ऑथर का ही डिवोर्स हुआ होता है. क्यों? क्योंकि वो खुद ही नेगोशिएट नहीं कर पाया अपने घर में. कहने का तात्पर्य बड़ा सिंपल है कि यदि टेक्निक होती बहन तो ह्यूमन नहीं होता ना, वो तो मशीन होता कि एंटर दबाया तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और एस्केप दबाएगा तो बंद हो जाएगा. ह्यूमंस नहीं, ह्यूमंस हैं, टेक्निक नहीं होती है. बट हाँ तरीके होते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं अप्रोचेस. ओके, एंड अप्रोच ये है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ नेगोशिएट करते हैं तो कुछ 7 प्रकार हैं. ओके, जैसे कि नेम्स ड्रॉपिंग है. ओके, जैसे कि हाउ यू पास ऑन द डिसीजन मेकिंग टू समबडी एल्स, ऐसे करके. बट ऑब्वियसली टुडे नॉट द टाइम फॉर ऑल दिस 7 टैक्टिक्स. पर ऐसा होगा तो मैं उस 7 टेक्निक का एक छोटा सा 1 पेजर राइटअप मैं अपने शांतनु को भेज दूंगा. जो पार्टिसिपेंट ने डायरेक्ट मांगा आप उनको भेज सकते हैं. बट देयर आर 7 अप्रोचेस, इनमें से कोई भी एक अप्रोच हो सकता है. जी. Thank you very much, sir. Now the next question is, in negotiation, if other party uses the unethical tactics, in such case, how one can handle the situation? ये है ना, आप क्या बोलते हैं इसको, अपन डबल एज्ड स्वॉर्ड, बराबर ऐसे कुछ होता है ना. डबल एज स्वॉर्ड होती है ना, मतलब 2 धारी तलवार जिसको बोलते हैं. अपना हिंदी बेटर है ना, तो इसमें है ना. एक प्रोफेसर हैं जो बेचारा एथिक्स पढ़ा रहा है, तो एंड क्लास ले रहा था. मैं तो अपने रूम में बैठा था, मेरे को फोन आया उसकी वाइफ का. बोले मैं इनको फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहे. तो मैंने बोला ओ इज इन द क्लास. ओ मुझे कोई प्रॉब्लम था तो आप बताइए. आई आस्क माय वाइफ टू गेट इन हेल्प विथ यू, क्योंकि दोनों करीब करीब सेम बिल्डिंग में रहते थे. तो बोलती नो आस्क हिम टू कॉल मी बैक. आप चालू क्लास में? यस. ओके, मतलब मेरे को लगा कि थोड़ा डर गया हो, कुछ डेंजरस सिचुएशन होएगा. तो वो मैं उनके क्लास में गया, उनका क्लास चालू था. मैंने ऐसे नॉक करके मुझसे 1 मिनट, तो ठीक है. वो बाहर आए मेरे साथ. बाहर मतलब यू अंडरस्टैंड, जैसे क्लास का डोर होता है एकदम डोर के ऊपर आके खड़े रहे, व्हिच इज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन. ऐसा होता है. योर वाइफ इज कॉलिंग मी एंड आई थिंक देयर इज सम डेस्परेशन, सो कैन यू जस्ट टॉक टू मी, आई टॉक टू हर प्लीज. तो उसकी वाइफ के साथ उनका बात हुआ. बोलते हैं देखो हमारा माल सामान ऑक्ट्रॉय पे अटका है नाके पे, तुम मेरे को वो छुड़वाने में हेल्प करो. ओके, तो तुम मुझसे बात करो.
बोले नहीं, अपनी पर्ची वर्ची लेके जाना पड़ेगा, तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होएगा, और उसमें लगभग 4-6 घंटे घुस जाएंगे। यदि हमारा टेम्पो वाला उसको 500 रुपीज दे देगा तो अपना काम जल्दी निपट जाएगा। ऐसा वाइफ ने उनको बोला। एंड ये भाई साहब जो सिखा रहे थे क्लास में वाज ऑन एथिकल प्रैक्टिस इन बिजनेस। एंड उसकी वाइफ ने जब ये बोला तो फोन यहां पे था और उनका माइक्रोफोन भी इधर था, तो पूरा क्लास ने सुना कि उसकी वाइफ ने क्या बोला। अब ये मेरे को पूछते समीश भाई मैं क्या करूं? मैं बोला सर ये मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, लेकिन आज 500 रुपया हाँ बोलोगे तो घर बना रहेगा, 500 रुपया में ना बोलोगे तो बच्चे नहीं बने रहेंगे। दोनों परिस्थिति में आपकी कटेगी। उनको बोलता है मैं क्या करूं? मैं बोला इसको दो धारी तलवार बोलते हैं, ना आप इधर के रहे ना इधर के रहे। कहने का तात्पर्य ये है एथिक्स होने जरूरी है, जिससे किसी को आप बर्बाद नहीं कर रहे हो। If I am cutting down unit, then it is not ethics, it is beyond, I mean, it is not unethics, it is beyond that. But if I'm not cutting you down and then I'm doing something, then it is different. Paying that 500 rupees, बहुत long shot देखा जाए, क्योंकि ये तो खुद का यूज्ड मटेरियल था, सरकार को वैसे भी कोई टैक्स वगैरह तो जाना नहीं था, बल्कि ये यहाँ से टैक्सी लेके जाता, वहां पे जाता, निपटा के वापिस आता, तो इट वुड हैव बीन ए हरक्यूलियन टास्क फॉर हिम आल्सो, फॉर द वाइफ आल्सो। तो मे बी दैट 500 was perhaps justified at that point. Vis-a-vis, if he was trying to contravene, bypass, alter, damage the product और उसमें फिर वो लांच रिश्वत देता जिससे कारण देश को नुकसान होता है, तो शायद वो गलत होता। It's like that. I agree, sir, and it was really impactful. My last question, sir, because we are running short of time. Please. Right, sir. Sir, you are area of expert in family managed business also. और कुछ आता ही नहीं है। So the last question on such topic, sir, that like after pandemic, sir, the scenario has been changed a lot. I mean, for the business class people. So how like family business people should deal with the their stakeholders and with their employees in this tough time? उसका एक ही आंसर है, इसमें डायरेक्ट आंसर, ओके, एंड दैट इज ट्रांसपेरेंसी थ्रू कम्युनिकेशन। स्ट्रेट वन लाइन आंसर, बात कर लो। एग्जाम्पल, आज कल ही मेरी बात हुई, हमारा एक बच्चा है जो ट्रैवल के बिजनेस में है। मैंने उसको बोला कि क्योंकि जब ये हुआ था तो मार्च में मैंने उसको फोन किया था, तो उसने बोला कि समीश भाई देखता हूँ 2 महीना, बराबर है, तो 2 महीना हो गया। अभी मैं जून महीने में उसको फोन किया, बोले ओनली 4 people now left, rest everybody gone. तो ओके, एंड देन ही वाज एक्सप्लेनिंग द होल थिंग, एंड उसके एम्प्लॉइज को भी मैं जानता हूँ, मतलब आई नो द बिजनेस वेरी वेल। तो बंदे ने बड़ा प्रेम से मेरे को बताया, तो मैंने बोला तुमने बाकी लोग एम्प्लॉइज को क्या बताया? बोले एम्प्लॉइज को मैंने बताया नहीं, मैं एम्प्लॉइज के जब मेरे को ये जैसे बॉम्बे में छूट मिली ना कमिट करने की, इधर से इधर, इधर से इधर, आई एक्चुअली वेंट टू देयर प्लेस, मेट देम एंड देन टॉक टू देम। ऐसा नहीं है कि सेठ पैसा लेके भाग जाता है या ऐसा है, सामने खड़ा हूं, फेस कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। इन ए फैमिली there should not be any negotiation. In a family there has to be discussion. Always. In a family there should not be any negotiation. Negotiation में कुछ मिलने पे देने का भाव आता है या जरूरत उत्पन्न होती है। डिस्कशन में दोनों का फायदा होता है एंड बात होके खत्म हो जाती है। इसलिए परिवार में डिस्कशन होना चाहिए, नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। Thank you so much, sir. Fantastic explanation. And I thank you, sir, for sharing your knowledge with us, and your guidance and your positive words certainly going to add a lot of positivity in our life. Now, I would like to request our Vice Chairman, Shantanu Kharia, sir, to propose a vote of thanks to Mr. Samish Dalal, sir. सर को हंसी आ रही है।
Sir, it was for me, for personally, I should say, जो मेरे को लगा मतलब I felt like I'm attending your class live. मेरे को तो seriously लग रहा था कि मैं आपकी क्लास में बैठा हूँ. And I And we always don't want to stop it. I seriously don't want to stop this session right now. और बहुत सारे participants की request भी आई है सर कि आपका एक session और plan करना है इस series के अंदर. तो with your due permission, अगर आप हमको एक कुछ suggestions या आप बताएं अगर अपन इस चीज को प्लान कर सकते हैं तो for that we whatever, whenever you want, absolutely no problem, whenever you want. Yeah, and मतलब सर मेरे को तो इच्छा नहीं है, मैं थैंक यू कैसे बोलूं? थैंक यू मत बोल बेटा, थैंक यू मत बोल. थैंक यू नहीं बोलूंगा, बट आई विल एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू बिकॉज़ जितना आपने मेरे को सिखाया है एंड द वे यू हैव अंडरस्टूड मी ड्यूरिंग माय टेन्योर एट एसपीजेन एंड द वे यू मोल्डेड मी कि किस तरीके से मुझे डील करना चाहिए विद द प्रॉब्लम्स और विद एनीथिंग इन लाइफ. मेरा जो जनरल अप्रोच टुवर्ड्स द बिजनेस था या जो टुवर्ड्स लाइफ था, जिस तरीके का मैं सोचता था, वो सोच आपने मेरी धीरे धीरे बहुत ज्यादा चेंज करी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन मी. आज की डेट में आई डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस इन अ वेरी इजी मैनर. मतलब मेरे लिए कभी भी जो चीज पहले बर्डन लगती थी कि यार हाउ टू डील विद इट, उस चीज का जो मेरे को आइडिया भी नहीं होता था कि मैं इस चीज को कैसे डील करूं, आज मेरे को ये समझ में आता है. धीरे धीरे सिचुएशन को परखता हूँ, समझता हूँ. जो आप कहते हो ना कि सामने वाले व्यक्ति को समझो, नेगोशिएशंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड आई सीरियसली फील दैट कि जब मैंने समझना चालू किया तो मेरे को नेगोशिएट करने से बजाय सिर्फ डिस्कशन करता हूँ ऑन कॉल्स एंड वी क्लियर थिंग्स आउट. सो आई एम फीलिंग दिस change in me and I'm very grateful to you because of Please. you only this change happened. And thank you, sir. Please. God bless you beta, God bless you. Thank you so much, sir. I Thank thank you you so much, sir. again, sir. I thank you once again. I thank to our chairman, sir, Shri Anil Kharia, sir, to our vice chairman, Mr. Shantanu Kharia, sir, our group director, Dr. Puneet Kumar Jivedi, sir. Thank you for your presence. And I thank all the participants and the attendees. You all will receive the e-certification within the 7 working days. Thank you for your compliments and for the questions. You all are requested to fill the feedback link, which you will receive after the host will finish the meeting. You all are requested to fill that feedback link, please, so that we can give the certification to you. Now, lastly, thank you so much once again, sir. Okay, Have a great day. okay. Thank you. Thank you.